Namaste everyone and welcome to second part of our session on MBA interview questions and answers. So आज के session में we'll continue where we had left off in the first part. If you have not watched the first part, I'll strongly recommend you go back and watch the first part first and then come back to this session because it is more or less a continuation of what we did earlier. So MBA interview questions and answers की जब हम बात करते हैं तो we are now going to take up further sessions in this regard with the agenda being very इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस ऑन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को लेकर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, व्हाट आर द डिफरेंट variety of forms in which a similar question can be asked and how should your response differ with regards to such a question। तो ये पार्ट भी कवर करेंगे। then we'll take up the discussion on questions with regards to work ex and academics। तो वर्क एक्स और एकेडमिक्स के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। फाइनली विल टेक अप क्वेश्चंस दैट क्रिएट स्ट्रेस इन द इंटरव्यू। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट हैव हर्ड कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू था, दे वर ग्रिलिंग अ लॉट। ग्रिल इज द टर्म दैट स्टूडेंट्स यूज द मोस्ट। सो बहुत ग्रिल करा, स्ट्रेस इंटरव्यू था, तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, हाउ कैन वी बेटर प्रिपेयर आवरसेल्व्स सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस इंटरव्यू हो या नॉर्मल इंटरव्यू हो, नॉट मैटर टू अस एट ऑल। We should be able to crack the interview the way we are supposed to. So let's straight away start with the set of questions on the part of introduction. So obviously, पहला most common category of question that you think is tell us something about yourself. Very common question. Tell us something about yourself. Up because it is such a common question, you will realize that there are multitude of views available. And I've shared this earlier as well. Please don't believe any expert, including me, on face value. जस्ट बिकॉज समबडी सेइंग सो इसलिए हमें फॉलो कर लेना है, ऐसा अप्रोच मत रखिए। अंडरस्टैंड द लॉजिक और द रैशनल बिहाइंड व्हाट समबडी सेइंग एंड देन ट्राई एंड अडॉप्ट इट इफ यू फील दैट इट इज द राइट थिंग टू डू। तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ में देयर इज अ चांस दैट यू माइट हैव heard, read और seen some experts saying कि tell us something about yourself में आप ये चीजें बोल सकते हो। Let me give you my perspective as well कि what is considered ideal in terms of the expectation when the panel members ask कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, tell us something about yourself। So understand this part that the question is very specific, it is about yourself। So you'll start with your name. And how do you start with your name? I am Bhushan Bapat. I repeat, I am Bhushan Bapat. You can either say I am or you can say my name is. My name is Bhushan Bapat. But please do avoid myself. तो आप myself भूषण बापट इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, आप स्टार्ट करेंगे अपने नेम से। देन यू विल टॉक अबाउट डिटेल्स ऑफ योर place that you belong to। So I am born and brought up या आई वॉज born and brought up and so on and so forth। तो अपनी प्लेस की डिटेल्स आप शेयर करेंगे। यू विल शेयर डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक्स, फ्रॉम विच स्कूल and which board did you pursue your 10th standard, what were your percentage mark, from which school and board did you pursue your 12th standard, what were your percentage marks, and then coming to graduation, the name of college, the CGPA, the specialization, if in case there is some specialization, then you will talk of work ex and so on and stuff। इस सारे डिस्कशन में I have seen innumerable number of times students saying that I have done my schooling in 10th standard from SDPS। Now what the hell does SDPS mean? ये आपको पैनल मेंबर्स को कैसे पता होगा? तो एक्रोनिम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने। यू माइट से कि सर मेरे स्कूल का नाम बहुत फेमस नहीं है तो इतना इलाबरेट बड़ा सा नाम मेंशन करने का क्या सेंस। देयर इज अ गुड चांस कि आप भी फेमस नहीं हो पर आप अपने बारे में इलाबरेट करके बहुत सारी चीजें बता रहे हो। Correct? So then understand that panel members are there to assess you, judge you, evaluate you, and they'll want to understand everything about you in as much detail as possible as long as it's relevant। और स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम पूरा प्रॉपर तरीके से लेना will give a lot of value to the way you communicate। For example, when I say that I did my engineering, yeah, I pursued my engineering from SGS ITS Indore, doesn't make a lot of sense. Rather than saying I pursued my engineering in electronics and telecommunication from Sri Govind Ram Siksaria Institute of Technology and Science, passed out in the year so and so with a CGPA of so and so, and my major subjects included। The moment you elaborate it this way, understand that it makes your communication more complete। It gives a lot of value rather than saying कि आपने SGS से करा। A lot of times in my college, तो इंदौर में it's a very famous institute, so it is popularly called as GS। So I did my engineering from GS। बोलना does not make a lot of sense। You'll have to elaborate the full name of the college along with marks।
तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैसेज याद रखें. Then there are doubts कि sir should we share anything about our family members? Now think about it. Question is, tell us something about yourself. Is family an important part of who you are? Yes. But is the priority about understanding details of your family or about yourself? So clearly, the priority is about understanding details of yourself rather than the family. तो family के ऊपर बहुत brief details देंगे. For example, you might say that my father is a businessman and my mother is a homemaker, and I have an elder brother who's working. इतना बहुत है. You don't need to tell that, my father is a businessman. He completed his engineering in 1979 and was, employed in so and so. My mother is a homemaker, but she is also well educated and she used to teach students across the classes of second to 12th standard, etc., etc. My elder brother is married. He also has a son, and the son is in now 10th standard. So I enjoy playing with my nephew a lot. ये details family की irrelevant है अभी. तो आप बहुत लिमिटेड स्कोप में अपने फैमिली की डिटेल्स दोगे इफ एट ऑल यू वांट टू मेंशन, बिकॉज देयर माइट बी सम कनेक्ट विद रिगार्ड्स टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स. यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन बिकॉज योर फादर इज अ बिजनेसमैन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो बेसिक डिटेल्स रेलेवेंस रखेंगी, बट उसके बियॉन्ड डिटेल में नहीं जाना है. क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली. क्वेश्चन इज प्रायोरिटाइजिंग टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. बिकॉज फैमिली इज इंटीग्रल, यू माइट से अ लाइन और टू, दैट्स इट. इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. Can you include hobbies and interests? By all means. Can you include your achievements and skills? By all means. In fact, इस तरह के क्वेश्चन में you need to, in fact, for all the responses that you're going to give, you are expected to do a lot of soul searching. आपको बहुत ज्यादा soul searching करने की जरूरत है और आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ के वो 2-3 हाइलाइट्स क्या हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे किसी भी स्ट्रेंजर से. फॉरगेट इंटरव्यू पैनल. इमेजिन आप एयरपोर्ट पे हो, वेट कर रहे हो अपनी फ्लाइट का, या रेलवे स्टेशन पे हो, वेट कर रहे हो अपनी ट्रेन का, एंड यू कम अक्रॉस एंड मीट अ स्ट्रेंजर. And how do you want to share highlights where the person who you are discussing with might get engaged for the next 10-15 odd minutes, and he might not get bored as well but still might get to know you better, and so on and so forth. तो ऐसी 2 या 3 highlights आप अपनी लाइफ की सोच लें. It might be playing badminton at nationals. It might be, think of it in a formal sense. It might be in academics where you have scored really good marks, 100% marks across certain subjects. It might be representing in a certain international level conference or a national level conference. It might be anything that is slightly different. You might have done bungee jumping in South Africa. So आपने ऐसी कुछ चीजें करी हो जो कि curiosity arise करे, will create some kind of attention requisite from the panel members and they will want to explore more about that area. ऐसे 2 या 3 highlights आप please अपने career की सोच के रखें, which can then be a part of a very healthy discussion in the interview stage. तो ऐसी 3 highlights, 2 highlights आप बना के रखेंगे. Tell us something about yourself के लिए. There are multiple things that can happen. A lot of people feel, sir, should we keep our best part at the end of the introduction? एक क्वेश्चन आता है कि सर सपोज आई वांट माय इंटरव्यू टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आई हैव हर्ड कि अगर मैं अपना आखिरी का स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो बिकॉज आई एंड इट देयर, चांसेस आर कि वो लास्ट वाला सेंटेंस पिक करके मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे. डज दिस हैपन? तो आई से yes, it does happen, but there is also an equal chance of it not happening. A lot of times interview panel members may interrupt you in the middle. Suppose you start your introduction. I am Bhushan Bapat. I was born and brought up in Indore. I did my further education from IFT Delhi. जो भी कुछ आप बोल रहे हो और उसके बीच में इंटरप्ट कर दिया. अच्छा, you went to IFT Delhi, and then they'll start asking questions about that. तो आपका एंड तो आ ही नहीं पाया. तो अगर आप वेट कर रहे थे कि मेरा बेस्ट पार्ट तो एंड में आएगा और मुझे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, so this will create a lot of trouble. Therefore, it's important that you focus on 2 or 3 highlights which are interspersed at all the stages. Starting में एक बहुत अच्छा हाईलाइट हो, मिडिल में एक अच्छा हाईलाइट हो और एंड में एक अच्छा हाईलाइट हो. हाईलाइट के अलावा whatever you are saying, you need to be very, very well prepared for it. For example, when you say that you belong to a particular location, Delhi, you belong to Bhopal, you belong to Indore, you belong to Jaipur, you belong to Vizag. आप किसी भी लोकेशन के हो, अगर आप बोल रहे हो कि आई बिलोंग टू कोलकाता, देन यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट कोलकाता. क्रिएट अ 1 पेज डॉसियर जहां पे 1 or 2 पेज जहां पे आप उस पर्टिकुलर सिटी की हिस्ट्री, फेमस पीपल फ्रॉम दैट रीजन, मेयर ऑफ योर सिटी, टिपिकल हाइलाइट्स of the region, anything which is famous in and around that particular city,
any recent news that the city was talked about and so on and so forth. तो आपको 1 से 2 पेज का प्रिपरेशन अपनी सिटी के बारे में करके रखना पड़ेगा. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. वॉट एवर यू आर शेयरिंग इन द इंटरव्यू, please be prepared with lot of details for second third level of cross questioning if in case that happens. So tell us something about yourself was this part. इसी के अगर आगे चलें, so इसी क्वेश्चन के अलग अलग वेरिएशंस देख लेते हैं. So tell us something about yourself other than what is mentioned in your CV. आपके सीवी में जो मेंशन्ड है उसके अलावा कुछ शेयर करना है. सो हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस? There are a lot of academic details, work ex details, project related details already mentioned in your CV. तो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है. सीवी तो हमने पढ़ लिया है, आपका सीवी फॉर्म वी हैव गॉन थ्रू दैट. We want to know something else apart from this. So tell us something that is already not mentioned in your CV. CV में जो mentioned नहीं है वो आपको शेयर करना है. तो आप क्या शेयर करोगे? क्या चीजें हैं जो सीवी का पार्ट नहीं रहती हैं? Think about it. Life experiences. So when you share life experiences, anecdotes, stories from your own life, where you will explain that once in 10th standard, this happened to me. While I was in college, this happened to me. So you will have to be prepared with 3 or 4 interesting stories from your life, which you'll be able to share because stories or experiences nahi hai. Stories or experiences will be a good tool for you to showcase your ability to think on your feet, will also showcase your ability to highlight the skills and strengths that you have. Typically, we say, I'm very hardworking. Typically, we say, I'm very sincere. Typically, we say that I've been very punctual. Typically, you say that I'm a good team player. You say that you're a good negotiator, and so on and stuff. अब ये सारी स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप किसी स्टोरी के थ्रू बता दो दैट देयर वाज अ सर्टेन इवेंट वेयर आई वाज required to do this task and I was able to achieve 2x of what was expected, तो देन जॉब इज डन. आपने अपने स्ट्रेंथ्स को जस्टिफाई कर दिया ऑलरेडी इन दिस क्वेश्चन. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी. तो आपके सीवी में मेंशन नहीं है पर आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लाइफ स्टोरीज हैं, वो आप शेयर कर सकते हो. एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी डोमेन और एरिया. इट कैन बी अ पर्सनल इवेंट, इट कैन बी अ प्रोफेशनल इवेंट इन कॉलेज, स्कूल, वेर एवर. कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो पूछ ही ये रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ जो सीवी में नहीं है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट बिहेवियर. You can talk about a certain aspect which goes beyond hobby. जो हॉबी है वो तो मेंशन करिए आपने सीवी में, पर सीवी के अलावा वाला कुछ पार्ट है जिसमें आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो जो वाज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द सीवी बट यू फील यू कैन शेयर इट हियर, बाय ऑल मींस डू दैट. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर क्वेश्चन बोलें तो वन एट द सेम टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक जैसा क्वेश्चन है बट देयर इज अ डिफरेंट वे टू आस्क दिस क्वेश्चन. दे लुक एट योर सीवी फॉर्म, look at the details and then they'll ask you, okay, so all right. And some of the professors in the panel, IIM के professors बहुत senior रहते हैं और वो बहुत casual level पे बोलते हैं, ठीक है, so who is Bhushan Bapat? So they will take your name, वो आपका नाम लेंगे. So आपका नाम लेंगे, हु इज अक्षय जैन. तो आप अक्षय जैन हो, आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हो और आपसे वो इस तरह से बोलेंगे, अच्छा बताओ अक्षय जैन है कौन. सो इट्स लाइक दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द नेम दैट यू हैव एंड सेइंग अच्छा बताओ कौन है. Then the tone, style, the way you explain will change, but the content will remain same. तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का कंटेंट सेम रहेगा, हु इज भूषण बापट टाइप के क्वेश्चन में, बट इसमें आप लैंग्वेज चेंज करके बोलोगे. एंड यू विल ऑल्सो, when I say change the tone, the expression, the style of speaking, you will say that Bhushan Bapat is someone who. So this can be a good way to introduce. So उन्होंने who is Bhushan Bapat करके पूछा है, don't say I am Bhushan Bapat. Understand this part. क्वेश्चन Q&A वाला नहीं है, इट्स मोर ऑन द फिलोसॉफिकल लाइंस कि अच्छा भूषण है कौन. तो देन यू विल एक्सप्लेन दिस पार्ट इन द इंटरव्यू इन द सेम फॉर्मल टोन, भूषण बापट इज समवन हु, एंड देन यू कैन इलैबोरेट ऑन द सेम थिंग्स दैट यू हैव शेयर्ड इन टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. वो हाइलाइट्स आपको प्रिपेयर करके जाना है, बट इट मेक्स फॉर अ गुड कॉन्वर्सेशन विच इज व्हाट दे आर इवेलुएटिंग. इमेजिन आपने वही का वही आंसर बोल दिया, आई एम भूषण बापट, आई हैव डन, और क्वेश्चन का टोन लैंग्वेज स्टाइल अलग था, तो देन दे विल से कि अच्छा आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं. अब तो वो माइंडसेट बना के आए थे कि मेरे बारे में कुछ पूछेंगे और आपने आंसर स्टार्ट कर दिया. That should not be the case, right? Very, very interesting part of your preparation that I'll want you to do because it will clearly highlight another question area or STEM in your preparation, which is describe yourself in 1 word, 3 words, and 5 words. आपको अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. तो tell us 1 word that describes you. Tell us 3 words that describe you well. Tell us 5 words. ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है. चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए है कि किसी एक वर्ड में किसी को भी डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है.
किसी को भी, anyone. But then when you think of branding and marketing and perception creation during MBA and beyond, think of it this way: there are always these aspects of positioning that people look up to. तो जब आप टाटाज एज अ ब्रांड की बात करते हैं तो वन वर्ड दैट कम्स टू माइंड इज ट्रस्ट, कि यार टाटा का प्रोडक्ट है तो भरोसा कर सकते हैं। ये जो मैपिंग है, इसी तरह का इवैल्यूएशन वो आपसे चाह रहे हैं कि इफ यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ इन वन वर्ड, व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट पीपल विल look up to, what is that one word that you will want people to look up to, or what is that one word that people have looked up to when they think of you. तो आपको लेकर एक कोई सा वर्ड अगर सोचना हो तो वो क्या हो? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। अब आई टेल यू वेज टू रिसर्च दिस, है ना, दिस विल बी यूजफुल फॉर योर लाइफ। मतलब इंटरव्यू सिर्फ एमबीए एंट्रेंस के लिए नहीं है, इंटरव्यूज आपके जॉब के लिए आएंगे, इंटरव्यूज जॉब के बियॉन्ड आएंगे, लाइफ भर ये काम आएंगे। और एक लेवल पे सोल सर्चिंग ऑल्सो हेल्प्स यू इम्प्रूव yourself, you become a better version of yourself. So your version, let's say 7.0, after a certain level of preparation, after paying a lot of interviews, you'll become version 8.0, 9.0, 10.0. You're going to continue. तो आप अपना खुद का एक बेटर वर्जन बना पाओगे जब आप ये प्रिपरेशन कर लोगे। सो व्हाट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बेटर कर पाए? टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स फर्स्ट, पेरेंट्स, सिबलिंग, and ask them for an honest opinion कि tell us some adjectives that come to your mind when they think about you. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, फादर के साथ बैठो, मदर के साथ बैठो, उनको ये समझाओ कि मुझे अपना खुद का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में आती है व्हेन यू थिंक अबाउट मी। सो क्वेश्चंस किस तरह से उनको फ्रेज करके देना है वो वैसा है कि उनसे आप जानना चाह रहे हो कि आप वर्ड्स बता दो कि क्या आता है। हार्ड वर्किंग आता है, सिंसियर आता है, केयरलेस आता है, केयरफ्री आता है, ओबीडियंट आता है, डिसोबीडियंट आता है, स्मार्ट आता है, इंटेलिजेंट आता है। यू विल रियलाइज that parents will have very different set of adjectives for you compared to your sibling. And then ask the same question to closest of friends, they will have some very different adjectives for you. And then ask the same question to some of the teachers that you've studied with, जिनके साथ आपका कनेक्ट अच्छा है। इट कैन बी फ्रॉम स्कूल, इट कैन बी फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज में जनरली वो कनेक्शन इतना अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता टीचर्स के साथ, बट स्कूल लेवल के टीचर्स के साथ आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कनेक्टेड होंगे। या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ टीचर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप ज्यादा कनेक्टेड हो, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑफ दीज एग्जाम्स। जस्ट टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर परसेप्शन अबाउट यू व्हेन यू थिंक ऑफ एडजेक्टिव्स। यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स। सोशल मीडिया पे आपको लग रहा है इंस्टाग्राम का यूज करके आपको लोगों से फीडबैक चाहिए कि अटैच 3 कीवर्ड्स फॉर मी, अटैच 5 कीवर्ड्स फॉर मी, दैट्स योर कॉल। तो आप अपने लेवल पे जैसा आपको लगता है कि सबसे अच्छा तरीका रहेगा ये सोर्स करने का आंसर्स, वो आप यूज कर सकते हो। यू आर बेटर सूटेड टू डिसाइड ऑन दैट। बट वंस यू गेट दोज एडजेक्टिव्स, 18-20 एडजेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, देन पॉन्डर ओवर देम एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि व्हाट इज इट दैट यू फील connects the best, and that you will be able to use to describe experiences. For example, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि give us that one word that describes you, and if I say task oriented, so I am someone who is task oriented, मुझे टास्क पता पड़ जाएगा या मैं खुद के लिए टास्क क्रिएट कर लूंगा, तो आई विल फोकस 100% on execution of that task and getting it completed. I have 10 different examples to explain it as well. And therefore, when somebody asks me describe yourself in one word, मेरा आंसर रेडी है, मेरे एग्जाम्पल्स रेडी है, मेरी स्टोरीज रेडी है। ये एक वर्ड के लिए है, 3 वर्ड्स पूछे तो मैं 3 भी बता सकता हूँ, 5 पूछे तो 5 भी बता सकता हूँ। माई पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू इज इफ यू आर ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, कि आपको एक वर्ड पूछा, आपके दिमाग में क्लियर है कि मैं कौन सा वर्ड बोलूंगा खुद के लिए और वो क्यों बोलूंगा, उसके 4-5 अच्छे एग्जाम्पल्स रेडी हैं कि ड्यूरिंग माई 10th स्टैंडर्ड ये हुआ था, ड्यूरिंग कॉलेज ये हुआ था, ड्यूरिंग 12th स्टैंडर्ड ये हुआ था, ड्यूरिंग फैमिली इवेंट ये हुआ था। इन सारे एग्जाम्पल्स में देयर इज वन थीम विच इज कॉमन, विच इज मी बीइंग टास्क ओरिएंटेड। So I take things as tasks and I feel a sense of happiness and satisfaction when I'm able to complete it before time or on time with a lot of grace, whatever. तो ये वाले पार्ट्स, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड, 3 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, या बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इन चीजों का ध्यान दो। ठीक है, ये वाला पार्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। जनरली द टर्म यूज इज बेट। कैन देयर बी सम बेट थ्रू विच वी कैन ड्राइव आवर इंटरव्यू? अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि इंटरव्यूज आर अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल इज द वन वर्ड दैट I'll attach अगर इंटरव्यूज को डिस्क्राइब करना हुआ इन 1 वर्ड। So then, and you will realize this once you appear for a lot of interviews, a lot of mock interviews, a lot of actual interviews,
that interviews are unpredictable because human beings ka behavior is unpredictable. Irrespective of the profile you have, the person who's in charge of asking questions might have a completely different mindset at that point in time. He might be very happy, he might be sad, and despite the fact that we might say कि नहीं वो बहुत objectively assess करने के लिए वहां बैठे हैं, human beings का human bias नहीं हटाया जा सकता, और वो नेगेटिवली लेना भी नहीं चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हु दे आर. तो जब वो ह्यूमन बायस के साथ आएंगे, हो सकता है दे माइट बी इन वेरी गुड मूड एट, दे माइट स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद दिस कि लेट मी टेल यू अ जोक एंड देन यू कैन ऐड ऑन, और वो खुद से अपना एक जोक शेयर कर रहे हैं एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड योर रिएक्शन. इमेजिन दे आर इन अ वेरी सैड मूड एंड इन द स्टार्ट दे से दैट टेल अस वन गुड जोक which does not hurt the sentiments of anybody else. अब सडनली और कॉट ऑफ गार्ड, यू माइट से कि मैं तो इंट्रोडक्शन और ये सब प्रिपेयर करके आया था कि पहला क्वेश्चन ये होगा, जाते से उन्होंने ये बोल दिया कि एक जोक सुना दो. अब जोक सुनाने के लिए आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई कुड नॉट शेयर अ जोक, या मैंने जोक शेयर करा तो मुझे खुद को ही हंसी नहीं आई. फॉरगेट द पैनल मेंबर्स एंड सो ऑन स्टफ. सो इंटरव्यूज आर अनप्रिडिक्टेबल एंड देयरफॉर ये जो बेट वाला एंगल है, एबिलिटी टू ड्राइव योर इंटरव्यू, the best way to drive your interview is to be very well prepared with whatever you're going to say. तो आप जब कुछ बोल रहे हो तो उसके बैक एंड पे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अगर हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं कि अच्छा मैं ये बोलूंगा, इस पे क्या पूछ सकते हैं, प्रिपेयर 3-4 थ्रेड्स. सो व्हेन आई से आई एम फ्रॉम इंदौर, इंदौर में हिस्ट्री पूछ सकते हैं, इंदौर में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पूछ सकते हैं, हाइलाइट्स पूछ सकते हैं, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं, केस स्टडी पूछ सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैसे करा, कमर्शियली कैसे वायबल हुए, हाउ आर दे गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कमर्शियली एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं. I've prepared for these different threads so that in case there is a question, I'll be able to respond to it beautifully. और ये पार्ट जब हम कर पा रहे हैं तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू ड्राइव योर इंटरव्यू. एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ड्राइव करने के तरीके को लेकर क्या हो सकता है. समटाइम्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीआरआर, ऐसा पूछ लेते हैं. सो इफ द वैल्यू ऑफ सीआरआर इज लेट्स से 4%, यू कैन से इट इज 4% ऑफ एनडीटीएल, और एनडीटीएल पूरा एक्सप्लेन ना करते हुए यू कैन से कि इट इज 4% ऑफ एनडीटीएल. जनरली पैनल मेंबर्स माइट आस्क व्हाट इज एनडीटीएल, so then you will explain net demand and time liabilities, and then you will ask, should I explain what are demand and time liabilities and why is it that net is written before it. तो वो आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो. तो प्रिपरेशन इज द बेस्ट वे कि आप जब कोई भी रिस्पॉन्स दोगे तो दे विल वांट टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को लेकर क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज द आइडियल टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट आरबीआई शुड कीप, विल से 4%. 4% आइडियल इन्फ्लेशन का टारगेट है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई. नाउ व्हाट इज सीपीआई? सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो आपने अपने लेवल पे बैकएंड पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है कि जब आप 4% इन्फ्लेशन का टारगेट बोलते हो तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई. और सीपीआई क्या है, सीपीआई का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन आपने बहुत सॉलिड कर रखी है. इसके बियॉन्ड क्या पूछेंगे, हमने 3-4 सेट प्रिपेयर कर ली. इसके बियॉन्ड अगर पूछ भी लेते हैं तो देन अंडरस्टैंड कि अगर हम कॉमनली आस्क क्वेश्चंस के बियॉन्ड जाकर क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे तो इट इज परफेक्टली फाइन. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसके बियॉन्ड नोबडी इज all knowledgeable. So omniscient is the term. So they also understand that nobody is omniscient. You are also a normal human who is wanting to do well in life and want to get admitted to one of the good B schools in the country. उसके लिए जो expectation है वो fulfill कर पा रहे हो क्या, टिक. तो then nothing much to worry about. Next is questions on work and academics. तो ये part भी बहुत important है. People with work. तो when people have work, understand this part that there'll be questions on academics, questions on favorite subjects, weak subjects, major project paper presentation, CAT के preparation questions and puzzles. Broadly, this is the aspect that they are going to cover. WorkX के questions यहाँ मैंने नहीं लिखे because WorkX typically will be different for each individual. You might be a civil engineer working in, let's say, L&T Infotech. Yeah, L&T in general, not the Infotech part. Infotech is typically the software arm. You might be a mechanical engineer working in some company. You might be a software engineer working in Google, Microsoft, or any of the software companies like TCS, Infosys, Capgemini, Cognizant, etc., Wipro. आपका रोल क्या है वर्कएक्स में, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. सो क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे रहेंगे? द क्वेश्चन माइट बी, टेल अस a typical day in your job role. What are the typical job responsibilities? What are the challenges that you face? What are the 3 important learnings that you have had as a result of your workix? Given your company, they will want to ask a lot of questions about your company. For example, TCS. So how many employees are working in TCS? What is the workforce like? Because TCS is the largest employer in the country,
तो कितने एम्प्लॉइज हैं इफेक्टिवली टीसीएस में, दे विल वांट टू नो कि आपको कितना पता है आपकी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप काम करते हो। व्हाट आर द फाइनेंशियल्स लाइक, व्हाट वर द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स लाइक, प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं थी, रेवेन्यू कितना जनरेट करा, फ्यूचर आउटलुक क्या है, अगर शेयर मार्केट पे लिस्टेड है आपकी कंपनी तो उसका शेयर प्राइस क्या था, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, एनी फेमस पीपल इन न्यूज फ्रॉम योर कंपनी, हु आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर कंपनी, वो कॉम्पिटिटर्स कितना अच्छा कर रहे हैं, मार्केट शेयर किसका ज्यादा है अक्रॉस कॉम्पिटिटर्स, कितना कितना मार्केट शेयर है, इंडस्ट्री के बारे में दिल वांट टू नो कि इफ यू बिलोंग टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री व्हाट इज द फ्यूचर प्रोजेक्टेड ग्रोथ फॉर सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, गिवन दैट यू आर वर्किंग यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि 3 साल बाद सॉफ्टवेयर में क्या बड़े चैलेंज आने वाले हैं, इज द इंडस्ट्री गोइंग टू ग्रो एट द सेम पेस विथ विच इट ग्रू अर्लियर, या कुछ और चैलेंजेस आएंगे जिसके कारण ग्रोथ रुक सकती है, what are the good things, what are the future big x factors that are going to drive this industry, suppose you are in telecom, तो टेलीकॉम में 3 एक्स फैक्टर्स ऐसे क्या हैं जो टेलीकॉम की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, क्या फ्यूचर आने वाला है, क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन वर्कएक्स विल बी ऑन दीज लाइंस एंड दे आर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक एंड यूनिक to the kind of job experience you have. I'll come to academic questions, which is questions related to subjects that you've studied in your graduation, जो भी आपका लास्ट एजुकेशन रहा है उस लास्ट एजुकेशन के सब्जेक्ट्स पूछते हैं। अब इसमें एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि सर व्हाई आर दे इवन आस्किंग दीज क्वेश्चंस, एकेडमिक क्वेश्चंस हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं। ये शायद मैंने फर्स्ट सेशन में भी बोला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपकी लाइफ का एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वांटिंग टू गेट एडमिटेड टू अ पर्टिकुलर एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम जहां पे आपको पढ़ाई करनी है एमबीए के लिए, तो आपके एमबीए के पहले वाले एजुकेशन में आप कितने सीरियस रहे हो, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर देम टू अंडरस्टैंड। अल्टीमेटली थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट, आपको अपना माइंडसेट ये बना के चलना पड़ेगा कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो, भले ही आपके पास 3 साल का वर्क एक्स है, भले ही you are graduated and you're now a lot more matured and good enough to take up a job or start your own venture, doesn't matter when you will join that institute, you will join it as a student of PGP, student of MBA, you will for the 2 year program will remain a student to the professors। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो दे विल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू हैव प्लेड दैट रोल एज अ स्टूडेंट इन योर प्रीवियस एजुकेशन, बिकॉज कल को तो वो पढ़ाएंगे, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, दैट्स इट। मतलब वो केस स्टडीज के थ्रू हो, वो असाइनमेंट्स के थ्रू हो, वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो, वो लीडरशिप टॉक्स के थ्रू हो, वो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू हो, वो टिपिकल कॉलेज आउटिंग के थ्रू हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ 2 year बी स्कूल का करिकुलम इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड यू आर अ स्टूडेंट गोइंग देयर टू लर्न। तो आपने प्रीवियस अपने एक्टिविटी में जब ग्रेजुएशन करा तब पढ़ाई कितने अच्छे से करी, ये उनका सबसे पहला बेंचमार्क रहेगा। Because if you have been a good student there, chances are you'll be a good student here. That is the way they want to assess. Is it compulsory? Guarantee तो किसी चीज की नहीं लाइफ की, but for the lack of better way, कोई और तरीका नहीं है उनके पास असेसमेंट का, तो वो इसी तरीके से असेस कर सकते हैं कि भाई तुमने पास में क्या करा है, तो आपके एकेडमिक्स कितने अच्छे हैं। अच्छा पूछ क्यों रहे, मार्क्स दिख रहे हैं ना, मेरा तो 9.6 जीपीए है तो अच्छा ही था, मैं तो यहाँ भी मैं अच्छा ग्रेड लेके आऊंगा। ग्रेड्स आर ऑलवेज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, किसी के लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टेन कॉलेजेस में मार्किंग स्कीम बहुत डिफिकल्ट है और उसके लेट सपोज 7.5 सीजीपीए है, बट ही वाज अ कॉलेज फिफ्थ रैंकर। अब कॉलेज फिफ्थ रैंकर के 75% है वर्सेस अ पर्टिकुलर डिफरेंट एजुकेशनल बोर्ड या स्ट्रीम जहां पर किसी के 97% है। अब 97 और 75 में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज डिफरेंट करिकुलम है, डिफरेंट मार्किंग स्कीम है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू जज, आस्क क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड कि उनका सब्जेक्ट नॉलेज कितना अच्छा है। तो वाइस वर्सा भी हो जाएगा, परसेंटेज खराब है, क्वेश्चंस पूछे तो पता पड़ जाएगा नहीं आता है, 75 से तो ज्यादा आता है, और किसी के 97 है पर बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, अच्छा ये तो मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं, इफेक्टिवली स्टूडेंट तो 80 लेवल का ही है। तो दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड the way you have performed and therefore the questions, so subjects in academics, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, they might ask you favorite subjects, they might ask you weak subjects। अब some students try to think in an over smart manner and say कि सर अगर वो हमसे favorite subjects पूछे, अगर वो हमसे favorite subjects पूछ रहे हैं तो should we share our weaker subjects, because मैंने ऐसा सुना है कि जब हम favorite subjects बोल देते हैं तो वो उन 2 सब्जेक्ट से तो पूछते ही नहीं है, कोई और सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं। तो जो दो मेरे वीक सब्जेक्ट्स है वो मैं पहले बता देता हूँ, अंडरस्टैंड, क्या गारंटी ऐसा करेंगे, हो सकता है वो जेन्युइनली आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स ही जानना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आल्सो अंडरस्टैंड कि सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट बहुत अच्छा हो ये बहुत रेयर है।
तो वो आपसे जानना चाहेंगे आपने कौन सा अच्छे से पढ़ा है, आपको कौन सा पसंद था, तो जिसके बारे में डिस्कशन करें तो ज्यादा फेयर इवेल्युएशन हो। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एकेडमिक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, दिस इज अ जनरल असेसमेंट ऑफ योर कैंडिडेचर। तो दे माइट आस्क अ जेन्युइन क्वेश्चन और तब आप फंस जाओगे। अच्छा, वीक सब्जेक्ट्स में हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बोलते हैं तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगा कि देखो ये तो इसका वीक सब्जेक्ट है, वीक के क्वेश्चंस पूछे और ये तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है, तो फेवरेट तो कितने अच्छे होंगे। Never try and be over smart in the interview. Panel members are smarter than you, and you will always find कि honesty is the best policy. Really, honesty is the best policy when it comes to interviews. अगर आप honest रहेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं वो शेयर कर दो, वीक्स पूछे जो आपको कम अच्छे से आते हैं वो शेयर कर दो, वीक के क्वेश्चंस पूछे ठीक ठाक तरीके से आंसर कर पाए नहीं कर पाए डजेंट मैटर, आपने पहले ही बोल दिया था वीक है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। फेवरेट के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाए, यू कैन एटलीस्ट शेयर सम अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रिपेयर्ड वेल। सो यू माइट से कि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये पार्ट अच्छे से कवर कर लिया है, कार्नोट साइकिल मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करती आती है, जो पार्ट आप पूछ रहे हो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन का वो शायद इतने अच्छे से नहीं आता। सो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन व्हेन यू से दैट दिस हैज बीन योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज इट दैट यू लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड। मेजर प्रोजेक्ट्स एंड पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डन, प्लीज प्रिपेयर ऑन दैट। कैट प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू कैट प्रिपरेशन रहता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। बिलीव मी, a lot of people are not able to prove Pythagoras theorem without the use of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा यूज करके तो आप बहुत इजीली कर ही सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और वहां पे ट्रायंगल बना के प्रूव कर दो, 2 सेकंड में प्रूव हो गया। बट दे विल से कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज मत करो, फंडामेंटल लेवल पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बता दो, एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। देन जैसे आपका परसेंटाइल तो 95 आया, क्या क्या और अच्छा पड़ा था, एंड सडनली और अंडर प्रेशर कि यार ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दे आर अज्यूमिंग कि मेरा गलती से मैथ्स में अच्छा आ गया बट मेरा मैथ अच्छा नहीं है ना। सिमिलरली दे माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, तो कुछ पजल्स थ्रो कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं पर्टिकुलर ग्रिड में, नंबर ऑफ टैंगल्स काउंट करने हैं ग्रिड में, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने शायद कैट प्रिपरेशन में पढ़े हों, ऐसे स्टैंडर्ड पजल्स भी पूछ लिए जाते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आई थिंक आई हैव सेड दिस अर्लियर, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अच्छा, कई बार माइंडसेट ये था कि सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का, मुझसे क्यों ये ग्राफ पूछ रहे हैं। दो रीजन से आपसे ग्राफ पूछने के, वन रीजन इज कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ्स आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू डायमेंशनल ग्राफ्स, टू डायमेंशनल नहीं है, थ्री डायमेंशनल ग्राफ तो कभी भी नहीं पढ़ने वाले हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और वो ग्राफ्स हर लेवल पे, इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स आएंगे, फाइनेंस में ग्राफ्स आएंगे, मार्केटिंग में ग्राफ्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हर लेवल पे यू विल अंडरस्टैंड ग्राफ्स बिकॉज इट इज गिविंग यू रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। तो योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स इज अ मस्ट। अल्टीमेटली लाइव ग्राफ्स भी चलनी है, प्रेजेंटेशन दोगे तब भी ग्राफ्स बनाओगे। तो ग्राफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो दो चीजों से चेक करें, एक तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, आता है खुद से या नहीं आता है। चलो नहीं आता है तो आप अप्रोच कैसे करते हो। आर यू समवन हु गिव्स दिस थॉट कि अरे यार ग्राफ्स तो मुझे आते नहीं, क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो द आंसर, स्ट्रेट अवे मना कर दिया। या यू आर समवन हु इज विलिंग टू ट्राई एंड स्ट्रगल एंड गिव अ अप्रोक्सीमेट आंसर कि ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से ग्राफ, बिकॉज दिस इज मोर लॉजिकल। ग्राफ इज प्योरली लॉजिकल, उसमें रिलेशनशिप ढूंढनी है। अब फंक्शन ही नहीं पता तो अलग बात है, तो log x का मतलब क्या होता है ये नहीं पता तो log x का ग्राफ नहीं बना पाएंगे। बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया या y इज इक्वल टू मॉड x दे दिया, और मॉड का बेसिक आइडिया है यू कैन प्लॉट पॉइंट्स एंड सजेस्ट कि दिस कुड पॉसिबली बी द ग्राफ। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि कल को जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इकोनॉमिक्स फाइनेंस के ग्राफ्स बनेंगे तब आपका रिएक्शन ऐसा ना हो कि अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ। तो भाई मैथ तो पढ़ना पड़ेगा आगे जाकर, तो अभी आपका एटीट्यूड कैसा है, दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग। तो लॉजिकल प्लस मैथमेटिकल पजल्स ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का। जब आपसे एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, सो पजल्स में टिपिकल हैट बेस्ड पजल पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन गिविंग यू सर्टेन सिचुएशन जो ऑन योर फीट यू विल हैव टू थिंक। तो पजल्स के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं, इफ यू वांट यू कैन शेयर इट दिस इन द कमेंट्स, विल शेयर एन इंपॉर्टेंट लिंक जहाँ पे पजल्स का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि किस तरह के कॉमन लॉजिकल और मैथमेटिकल पजल्स टिपिकली गेट आस्क्ड। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रेस इंटरव्यू। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पूछा जाता है विच इज एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा कैन बी ऑन द लाइंस ऑफ ब्राइब, झूठ बोलना, चूजिंग वन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू विल रियलाइज कि आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या हो। व्हेन यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एथिकल डायलेमा, जब आपसे बोला है कि एथिकल डायलेमा होता क्या है ये समझ लें। डायलेमा टिपिकली वुड मीन यू आर अनडिसाइडेड, यू डोंट नो विच वे टू गो।
There can be two choices or more than two choices even, but you're not sure. Die typically refers to two, तो generally two के लिए रेफर होता है लैंग्वेज के पॉइंट से, बट डायलेमा टिपिकली इज यूर अनश्योर, आपको नहीं पता है कि क्या करना है. अब एथिकल डायलेमा मतलब एथिक्स का उसमें कुछ ना कुछ रोल रहेगा, एंड यू आर नॉट रियली श्योर कि क्या करा जाए. तो इधर ऑफ द टू ऑप्शंस, आप ब्राइब दो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ब्राइब नहीं दो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो अब इसमें डायलेमा क्यों है? क्योंकि सर मैं चाहता तो हूं कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बट मैं ब्राइब भी नहीं देना चाहता बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट इन एथिकल इन वॉट आई डू. तो मैं अपने कैलिबर पे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे हैं इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता हूँ, ना कि इसलिए कि मैंने पैसे खिला दिए किसी को. आई हैव गिवन सम अदर बेनिफिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आई एम गेटिंग दिस. मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सेल करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई रेफरेंसेज. तो ये वाले जो दो इश्यूज हैं, ये दोनों साथ में नहीं हो पा रहे. अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, और अगर आप पैसे दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा, बट यू विल नॉट बी हैप्पी इंटरनली. क्या करोगे? विल यू गिव ब्राइब और विल यू से कि नहीं ठीक है आई एम ओके विद दिस? तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि एथिकल डायलेमा तो ये है. अब क्या करेंगे हम, ब्राइब देंगे या नहीं देंगे? इसका पर्पस पहले समझते हैं कि ऐसा पूछा ही क्यों जा रहा है हमसे. किसी से भी पूछेंगे तो वो पर्सन इन जनरल इन दोनों में से कुछ भी चूज करेगा. देयर कैन नेवर बी अ राइट और रॉन्ग आंसर, है ना? ऐसे सोचा जाए तो कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता. तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वो ये पूछ इसलिए पूछ रहे हैं दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड योर मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट विथ रिगार्ड्स टू हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस. कल को बिजनेसेस में बहुत बार यू विल गेट स्टक ड्यूरिंग एमबीए एंड बियॉन्ड. बहुत बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी. आर यू समवन हु गिव्स अप कि नहीं सर मैं तो मतलब आई डोंट नो क्या करना है, या यू आर समवन हु विल वांट टू लुक फॉर सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका पहला रिस्पांस क्या होना चाहिए? पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, सर आई डोंट बिलीव इन ब्राइब, आई बिलीव इन मेरिट, एंड इफ माई प्रोडक्ट और सर्विस इज वेरी गुड देन आई स्ट्रांगली फील दैट आई शुड बी एबल टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू ब्राइब. तो पैनल मेंबर्स तिड़के बोल सकते हैं अरे नहीं नहीं तुमने क्वेश्चन आंसर नहीं सुना, हम क्लियरली बोल चुके हैं कि ब्राइब दोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो देन अगेन यू विल से ऑल्दो I strongly feel that merit पे contract मिलना चाहिए, but we are not living in an ideal world. So if what you are saying is hypothetically true, then I'll say that I'll not bribe. That's clear in my head. I'll not bribe at all. But still, I'll want to find other ways to get that contract, which are ethical and legal. तो आप अपना परसेप्शन बता रहे हो कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप फाइट मार रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में हो, बिकॉज लाइफ में ये चीजें होंगी. यू विल वांट टू फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच आर विन विन, व्हिच आर नॉट अगेंस्ट योर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स. और आर यू समवन, तो बोलेंगे नहीं नहीं तुमको दो बार बोल दिया, एक क्लियर आंसर दो कि ब्राइब दोगे या फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट के चल जाएगा. तो देन यू विल से सर आई विल नॉट टेक ब्राइब, आई विल एज आई सेड आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो मे बी देयर आर अदर वेज, मे बी आई कैन थिंक ऑफ सम अदर कंपनी इफ दैट कंपनी इज नॉट गिविंग मी कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ कंपनीज, बट मैं ब्राइब तो नहीं दूंगा, सो आई विल नॉट टेक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट कंपनी. उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो मैं नहीं लूंगा. Perfectly fine. You showcase that you are willing to think and not willing to compromise on ethics. They'll say नहीं नहीं पर लाइफ तो ऐसी चलती है, तुम्हें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तुम तो बिजनेस नहीं कर पाओगे. तो again you'll say that I think sir in the longer run to be sustainable it's extremely important that we have good business practices. If our product and service is good, I think I'll be able to find ways to sell it. तो हम कॉन्ट्रैक्ट ला पाएंगे, हम प्रोडक्ट सर्विस को बेच पाएंगे अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मे बी आई ट्राई एंड फाइंड वेज कि हाउ कैन आई मेक द प्रोडक्ट बेटर so that clients automatically agree कि नहीं this is a good product, let's use it. तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हम एथिकल होके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और एथिकल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर केस में सस्टेनेबल है. और सस्टेनेबल है या नहीं है, देयर आर सम थिंग्स विच आर नॉट टू बी आर्ग्यूड अबाउट, सो टू से. मतलब उसमें इफ एंड बट वाला एंगल नहीं है कि अच्छा सर मैं पकड़ा नहीं गया तो मैं चोरी कर लूंगा. थिंक ऑफ इट दिस वे, आप चोरी क्यों नहीं करते हो? Why don't you kill people? Go around and kill people, because when you kill people you can have their resources. तो आप चोरी कर लो. क्यों नहीं करते हो चोरी? इसलिए नहीं करते हो कि पकड़े नहीं जाओगे. सर डर है यहाँ पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काफी वो है, मैं करूंगा एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए नहीं कर रहे हो क्या? नहीं. देयर आर सम थिंग्स विच आर गुड इन देमसेल्व्स विच यू कैन नॉट क्वेश्चन. जैसे एक्रोसैन कि अच्छा चोरी नहीं करना है, नहीं करना है, उसमें डाउट या डिबेट नहीं है. दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू फॉर n number of different reasons and therefore you are not doing it. It is not as if कि पकड़े जाएंगे इसके डर के कारण मैं नहीं कर रहा हूं. तो सेम आर्ग्यूमेंट बिजनेस में अप्लाई होगा. इफ यू आर श्योर कि सर देयर इज 100% गारंटी कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, पर इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ी नहीं जा सकती,
I hope you understand what is insider trading when it comes to stock markets. So this will never be a reason saying कि सर मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, और पकड़ा नहीं जा रहा हूँ तब तक तो कर रहा हूँ, तो किसी को पता ही नहीं है कि मैं कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द राइट वे. सो आप ब्राइब वाले केस में हमेशा एथिकल होगे. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कि सर आपने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आई ऑनेस्टी आई ऑनेस्टली फील कि झूठ तो बोलना पड़ेगा. इनफैक्ट अभी तक भी मैं यही मानता हूँ कि मैंने बहुत बार झूठ बोला है, और जब काम की जरूरत पड़ी तब तो बहुत झूठ बोला है. सो व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस कि क्या तुम झूठ बोलते हो, तो क्या मुझे बोल देना है नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. यू सेड कि ऑनेस्ट रहना, यू विल से यस आई हैव लाइड समटाइम्स, आई एम आल्सो ह्यूमन. बट लाइंग इज नॉट राइट. मैंने गलत काम करा है. डू यू स्मोक? यस सर आई स्मोक. क्या स्मोकिंग सही है? नहीं, नॉट एट ऑल. तो देन क्वेश्चन का लॉजिकल क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू हैव डन इट डज नॉट मीन इट इज राइट, एंड यू एक्सेप्ट दैट इट वाज अ मिस्टेक एंड दैट नाउ यू हैव लर्न, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू कमिट दोज मिस्टेक्स. फ्यूचर में हो जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता, वो अलग बात है. बट हमारा आज का माइंडसेट तो होना चाहिए कि हम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ या फ्रॉम द लास्ट 6 months 1 year आई हैव ट्राइड माय बेस्ट नेवर टू लाई. तो मैं झूठ नहीं बोलता बिकॉज गलत है झूठ बोलना. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आई जेन्युइनली बिलीव इन इट. और मैंने पहले भी बोला है, आपको ये कन्विक्शन खुद के अंदर लाना पड़ेगा कि आप ये क्यों बोल रहे हो, बिकॉज ये दिस इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज मुझे इंटरव्यू कन्वर्ट करना है. इंटरव्यू कन्वर्ट करना इज द सेकेंडरी पार्ट. ऑनेस्टी जेन्युइनली इज द बेस्ट पॉलिसी, समथिंग दैट यू बिलीव, बिकॉज वही चीज आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगी. आप ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाओगे. एंड इफ यू गो बाय crooked means, then you'll understand that you will focus your energies and intellect and everything in that particular direction. So rather than being good, genuinely good, you will try and find other ways. तो एग्जाम में चीटिंग करके मार्क्स लाना इजी वे आउट है, बट दैट विल नेवर लीड टू यू बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज वाइज. तो अगर मैं मेहनत करके 83 भी लाया तो मेरे 83 हैं खुद के, चीटिंग वाले नहीं है. ये माइंडसेट लाना पड़ेगा. तो व्हेन यू थिंक ऑफ दिस पार्ट ऑफ लाइंग, यू विल ऑब्वियसली से लाइक. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर उनको भी पता है कि हो सकता है आगे जाके झूठ बोले. मुझे भी पता है आगे जाके झूठ बोल सकता हूं मैं, तो मैं अभी क्यों नहीं बोल दूं कि हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ. या मैं अभी क्यों नहीं बोल दूं कि सर मैं बिजनेस में प्रैक्टिकल हूं और मैं तो ब्राइब लूंगा दूंगा. ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं. तो अंडरस्टैंड, अगर आपका माइंडसेट ही आज ये है, तो देन यू लैक द मेच्योरिटी दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एट योर एज. आपका माइंडसेट ये होना चाहिए मैं सही तरीके से ही काम करूंगा, और सही तरीके से काम होता है. There are a lot of examples that we have available. In fact, ethics is one of the most important subjects that you get taught during a B school, not just in a B school. Everywhere in a good curriculum, typically ethics is taught at a PG level. Law में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ऑलमोस्ट हर अच्छे कोर्स में एथिक्स पढ़ाया जाता है. क्यों पढ़ाया जाता है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. उस मेच्योरिटी के साथ आपको आंसर करना है कि नहीं, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, एथिकल रहूंगा, और आगे जाकर भी honest ethical तरीके से ही काम होगा. There are different examples that you can quote of all the scams that have happened and how bad reputation they've given to the institute that these people belong to. तो फेमस alumni में थोड़े नॉन फेमस alumni भी हैं, या नोटोरियस जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट लाई है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, वैसे एग्जांपल्स भी हैं. उनको कोट कर सकते हो दैट these are examples. Having said this, just because they were caught does not mean that that is the reason that I'll not do those things. I'm on very clear, even if people don't get caught, people should not lie, people should not steal, people should not kill, and so on. तो ये वाले रीजंस आप समझ लेना. कि चूजिंग वाला क्वेश्चन आता है कि अच्छा, यू आर ऑन अ बोट, मदर एंड फादर आर देयर, द बोट इज सिंकिंग, बोथ ऑफ योर पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू स्विम. आपको एक को ही बचाना है, क्योंकि दोनों को नहीं बचा सकते, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में गए हैं. आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर किसी को बचा सकते हो, तो आप किसको बचाओगे? एक को ही बचा सकते हो. किसको बचाओगे, मदर को या फादर को? You don't have to say नहीं सर, I'll save my father because I'm more emotionally attached to him. मैं पापा को बचा लूंगा. कोई भी रीजन नहीं दे रहा है. सर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एंगल, फादर इज वर्किंग, he'll still be able to earn, mother is not working, तो I'll save my father. Stupid रीजन. क्या रीजन दे सकते हो जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ फादर और मदर में? कोई रीजन नहीं दे सकते. पीरियड. तो अगर ऐसे एथिकल डायलेमा वाले क्वेश्चन आते हैं कि दो लोगों में से दो फिंगर्स हैं, एक कट करना है, कौन सी कट करें? यू कैनॉट गिव रीजन सर दिस इज लॉन्गर, या दिस इज यूज फॉर डिफरेंट रीजन वगैरह वगैरह. कोई रीजन नहीं दे सकते. तो द वे यूल अप्रोच इज यूल ट्राई एंड सेव बोथ. आप हमेशा इस पे आर्ग्यू करोगे, इज देयर अ वे दैट आई कैन सेव बोथ? कैन आई कॉल फॉर हेल्प, समबडी कैन हेल्प माय फादर, आई कैन गो एंड हेल्प माय मदर. इज देयर अ वे वेयर आई कैन थ्रो बोट का कुछ पार्ट ऑन माय फादर साइड, ही हैज सम नॉलेज ऑफ स्विमिंग, ही विल बी एबल टू यूज इट, एंड आई विल गो एंड सेव माय मदर बिकॉज शी डजंट नो स्विमिंग एट ऑल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप हमेशा तरीके ढूंढोगे.
दिल कीप ऑन सेइंग नहीं नहीं एक को ही बचा सकते हो, क्यों फालतू टाइम पास कर रहे हो, एक आंसर दो एक आंसर दो। आपको अपना लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड शोकेस करना है कि सर इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू चूज, मैं किसी भी हालत में दोनों को बचाने की कोशिश करूँ। तो बोलेंगे अच्छा तुम तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, दोनों ही मर जाएंगे, तुम एक को तो बचा लो, डिसीजन ले लो, टेक डिसीजन, ये वाला एंगल दे माइट वांट टू असेस। देन विल से सर आई विल गो बाय इंस्टिंक्ट। तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा उस टाइम पे उस प्रेशर में, बिकॉज इट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इंस्टिंक्ट्स टिपिकली कम इन टू प्ले व्हेन यू आर थ्रोन इन दैट सिचुएशन। तो अभी तो मैं नहीं हूं, अभी मैं आंसर दूंगा तो वो लॉजिकल साउंड करेगा, इट माइट नॉट बी एन इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजन, तो इंस्टिंक्ट पे चला जाऊंगा मैं, बिकॉज एक को ही बचाना है। एंड देन इंस्टिंक्ट डज नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन कि ये इंस्टिंक्ट क्यों है, आई इंस्टिंक्ट है वो, तो मीनिंग ही वो है। तो देन द फाइनल रिजॉर्ट विल बी सर मे बी इफ इंस्टिंक्ट सेज फादर आई विल से फादर। नहीं नहीं तो अभी बताओ सर, अभी डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन कि क्या होगा, बट स्टिल इफ यू से एट दिस पॉइंट माई इंस्टिंक्ट सेज आई विल से जो भी आपको नाम लेना है ना। सो इट्स ओके, बट इट्स ओके आफ्टर 3-4 लाइन्स ऑफ रीजनिंग, देन दे अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज रियली मेच्योर, हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट, दिस इज व्हाट एनीबडी एल्स कुड हैव डन इन दैट सिचुएशन। वो भी क्या ही करते, वो खुद भी इस सिचुएशन में होते तो वो खुद पैनल मेंबर्स भी क्या करते। तो दे आर नॉट आस्किंग यू टू स्ट्रेस यू आउट एंड मेक यू फील कि आपको कुछ नहीं आता है, दे वांट टू असेस। तो स्ट्रेस इंटरव्यूज आर अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ फैबुलस इंप्रेशन इफ यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन द करेक्ट लाइन। सो आई होप एथिकल डायलेमास वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। इफ यू आर ऑफर्ड टी, कुकीज, स्नैक्स, सैंडविच वगैरह, तो कई बार पैनल मेंबर्स बहुत स्ट्रेच लेवल पे इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत लंबा टाइम रहता है, उनके बीच में उनके चाय कॉफी स्नैक्स आ रहे हैं, यू हैव एंटर्ड द रूम, यू हैव सीटेड योरसेल्फ, नाउ दे आर आस्किंग कि अच्छा चाय ले लो, तो देन व्हाट इज योर टिपिकल रिस्पॉन्स? विल से नो सर थैंक यू फॉर द ऑफर। आप बड़े पोलाइटली उनको मना कर दोगे। नहीं नहीं, सम प्रोफेसर्स इंसिस्ट, अरे लो यार, तुम भी कब से वेट कर रहे हो, 2-3 घंटे हो गए इंटरव्यूज के लिए वेट करते हुए, हैव सम टी कॉफी स्नैक्स, कुछ खाया अभी तक सुबह से? they genuinely might want to ask this, they are also human beings, they are professors, they treat you as students, they'll genuinely want कि आप भी कुछ ले लो। तो वो genuinely भी पूछ सकते हैं, तब भी आप बोलोगे नो सर थैंक यू, आई हैड समथिंग इन बिटवीन, ब्रेक था तो आई हैड सम टी कॉफी अर्लियर, थैंक यू। आप पोलाइटली मना करोगे, बिकॉज दिस इज जनरल वे ऑफ बिहेवियर दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। यू डोंट से हाँ मेरे लिए भी एक ब्लैक टी कर देना, ग्रीन टी कर देना। दिस इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू से टू द पीपल हु आर कैरिंग स्नैक्स और ब्रेकफास्ट फॉर देम। पोलाइटली सुनो। फिर भी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि प्रोफेसर उठ के आ जाते हैं और वो आपके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं बेटा ले यार कहाँ, विल स्टार्ट द इंटरव्यू 5 मिनट्स लेटर, हैव इट फर्स्ट। तो देन यू विल एक्सेप्ट इट। अब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, 2 बार बोल दिया, उठ के आ गए, बोल रहे हैं ले ही ले, क्यों शर्मा रहा है, तो देन यू विल टेक इट। बट देन यू विल नॉट स्टार्ट हैविंग इट स्ट्रेट अवे, अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है सैंडविच आया तो यस सर विल स्टार्ट द इंटरव्यू आफ्टर 5 मिनट्स, और बताइए क्या चल रहा है। नो, इट्स अ वेरी फॉर्मल इंटरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये नहीं करना ऑब्वियसली, but just sharing these things so that everybody is on the same page. Not asking you to sit. Yeah, I've already covered in part one. Go back and watch that part one. नहीं बैठने को बोले, it's okay. You'll wait for some seconds. If you feel that duration काफी लंबा होता जा रहा है, you may politely ask the permission to sit. Then next question. No questions are just sarcastic comment. So no questions are just sarcastic comment मतलब आपने अपना introduction दे दिया, you've said that's pretty much about it, and they are silent. टिपिकली इसको बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ नहीं बोल रहे, इनफैक्ट उठ के चले गए, थोड़ी देर फिर आ गए, यू जस्ट सिटिंग देयर एंड यू हैव नो क्लू क्या चल रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं फिर से इंट्रोडक्शन दूं अपना, या वो कुछ पूछेंगे। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, ऐसा एक्चुअली हो चुका है। तो व्हेन दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट। बहुत लंबा टाइम हो गया, तो यू कैन से सर आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, डू यू वांट मी टू शेयर फ्यू मोर थिंग्स, और इज दैट फाइन, ऐसा करके आप पोलाइटली पूछ सकते हो। आफ्टर सम सेकंड्स हैव पास्ड, इफ दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, but typically you're not expected to do anything. They just want to see how calm you can be in situations that you're thrown into. Sarcastic comments, कुछ sarcastic comments आपकी सिटी के बारे में कर दें, आपके एकेडमिक्स के बारे में कर दें, पढ़ाई लिखाई करी नहीं है ना, ग्रेजुएशन में मस्ती करी है बस, है ना, 7 पॉइंटर रह गए, ऐसा sarcastic कमेंट कर दिया स्ट्रेट अवे उन्होंने। तो यू हैव टू रिमेन काम। यस सर आई वुड एग्री दैट आई लॉस्ट फोकस दैट आई शुड हैव हैड। आप बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करोगे अगर सरकास्टिक कमेंट भी कर दिया, यू विल नॉट रिटॉर्ट। इफ यू फील की जरूरत ही नहीं है कुछ रिप्लाई करने की, कीप मम, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू फील की एग्री करने की जरूरत है, हाँ सर सरकास्टिक तरीके से बोल रहे हैं लेकिन बात तो सही है, तो यू एग्री, ऑनेस्टली एग्री एंड एक्सेप्ट, यस सर यू आर सेइंग बट आई हैव लर्न, वैसा करके आप बोल सकते हो। तो रिटॉर्ट कभी उल्टा जवाब नहीं देना है, नो सर आई डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, हाउ डेयर यू से सच अ कमेंट, ऑब्वियसली इन टोन पे, ऐसा कोई नहीं बोलता,
बट ऐसा इन टोन्स पे सोचना भी नहीं है, बिकॉज कई बार हम बोलते पोलाइटली हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने बोला ही कैसे ऐसा मेरे बारे में। तो वो थॉट भी नहीं लाना है हमें, बहुत लॉजिकली क्लियर रहना है कि हमें क्या बोलना है। रेट मी एज एन इंटरव्यूअर, क्वेश्चन ने बोला कि अच्छा इंटरव्यू हो गया, अब हमें रेट करो आउट ऑफ 10 कि हमने कितना अच्छा इंटरव्यू लिया। तो द फर्स्ट थिंग दैट विल से, क्या बोलोगे? First thing that he'll say is, "Sir, I am not in a position to rate you as an interview panel member. I think I don't have the capabilities. I'm also not in the right position to assess, evaluate. I also don't know the parameters. I think it is not right for me to rate." पहला चीज आप क्लैरिटी से ये बोल दोगे कि आपकी वो जगह ही नहीं है कि आप रेट करो। अरे यू आर गिविंग सम लॉजिक और द अदर, आई एम टेलिंग यू जो भी तुमको समझ में आ रहा है। आई ऑल्सो नो दिस दैट यू आर नॉट इन अ पोजिशन, मुझे भी पता है कि तुमको नहीं आएगा, बट फिर भी रेट तो करो। 10 में से तुमको क्या लगता है? तो देन अगेन you'll say, sir, I seriously not aware कि how should I go about rating it, but I think you are in the right position and you would have done the best that you could. So I think I'll rate you a 9 or a 9.5 or 9.7. And again, I don't know where to cut half marks. So if you honestly ask me, I should actually give you a 10. तो मुझसे अगर आप पूछोगे कि आधा मार्क क्यों कट करा, एक मार्क क्यों कट करा, तो मेरे पास रीजन ही नहीं है। आई गिव यू 10 on 10। यू विल टिपिकली और ऑन द हायर साइड। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, इंटरव्यू कन्वर्ट करना है इसलिए बोल रहे हो। नहीं सर, आई सेड अगेन, आई थॉट ऑफ कि मैं 9 या 9.5 इसीलिए दूं बिकॉज इट शुड नॉट फील कि यू नो माई रिजल्ट इज इन योर हैंड्स एंड आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ऐसा नहीं है। इसलिए आई फेल्ट, बट ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ रीजन। देन दे विल अंडरस्टैंड द रीजन एंड लॉजिक। तो आप हायर साइड पे मार्क्स दोगे विद दिस कि ये रीजन नहीं है, मैंने 9 9.5 इसीलिए सोचा था, ये पहले बोला भी था, पर 10 इसलिए दे दिया कि अगर आप मुझसे रीजन पूछोगे कि मैं मार्क्स कहाँ कट करूं, तो मुझे नहीं पता। एंड एज आई सेड, आई एम नॉट इन अ पोजीशन। तो दे यू हैंडल दिस क्वेश्चन रियली वेल इफ यू हैव बीन ऑन द करेक्ट लाइन। दे माइट आस्क यू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 कि हम तो देन यू विल अगेन से दैट यू नो आई थिंक आई डिड well enough as far as my preparation was concerned, but I think there were areas where I could have done better. I've learned from them, but it was a fabulous experience. I'll give myself an 8 on 10 or a 7.5 on 10. इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं देना है, पर बहुत कम में नहीं देना है। You'll have to give an appropriate answer where you feel you have been able to justify. ठीक है? तो broadly this last category of question, choosing a college if you convert many. So standard answer will be like, suppose आपका convert हो गया IMT गाजियाबाद और एग्जाम बी, और आपसे पूछ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम बी के एक्चुअल इंटरव्यू में कि अगर दोनों कन्वर्ट हो गए तो IMT गाजियाबाद लोगे या जेवियर्स भुवनेश्वर लोगे, कौन सा कॉलेज लोगे? दोनों कन्वर्ट हो गए, करो। तो देन यू विल से, सर एट दिस पॉइंट माय ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट बोथ, बिकॉज इंटरव्यू में बैठे हो ना, कन्वर्ट हुआ नहीं अभी। सो यू विल से दैट माय ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क हार्ड एंड कन्वर्ट बोथ, prepare well. Once that is converted, I'll take a better decision, better informed decision later. So नहीं रिसर्च अभी नहीं करी क्या? नहीं सर, रिसर्च करी है, बट माय फोकस हैज बीन टू prepare for the interaction and convert this rather than deciding which college to go. Both colleges are fabulous. I'll be happy to get into any of them, and that is the way I'll want to go about uh, my preparation and my future course of action. So I'll take that decision later. मैं वो decision आगे जाकर लूंगा, अभी नहीं एक आंसर दो। तो then again you'll say, sir, not in my position at this point in time to take a call. Both colleges are good. I'll be very happy, as you said, even hypothetically thinking कि मेरे दोनों colleges convert हो गए, it gives me a great sense of pleasure. But I'll still want to focus and put my head down and work towards converting both. अरे तुम diplomatic हो रहे हो, एक आंसर दो। तो then you might बहुत ज़्यादा insist करा तो you might take an answer and say, as per public perception, friends and some of the people that I interacted with, although the sample space is small, they've said that XIMB is better because of so and so reasons. But as I said, these are public perception. These are things that I've come across from friends, peers, rankings, which I think are not sufficient for me to take that call. So I'll research more and get that. Perfectly well. इसके beyond कोई argue नहीं करेगा, ठीक? So I think that's it. Questions regarding children, I think these questions are very rare, but I've kept it in the slide. Again, the idea is to check the way you respond, whether you react or whether you respond. That's the idea that they want to check. कि working women है तो typically they might ask questions कि any which ways, what are your plans on marriage? After a few years you are going to settle down with family. So why is there any need for you? So then you don't have to take it personally and say कि how can you ask such a question? We have no difference between men and women and how are you? उस तरह से हैंडल नहीं करना है उन्हें। बहुत लॉजिकल रीजन देना है दैट इन टुडेज डे एंड एज आई थिंक women are as good as any other men, and they are able to manage both family. In fact, everything has changed. The way men contribute towards family and work, the way women contribute towards family and work. We have hybrid work models. Some part of it can be done from home, some part can be done through office, and so on stuff. So in today's day and age, there is hardly any reason for me to even think or worry about
how will I manage family and work. So I'm very career oriented, ambitious, and at the same time also a family person. So I think I'll be able to manage both equally well, and there are a lot of examples that I can look up to. In fact, the 2 year MBA curriculum will also give me a lot of training to handle multiple important things at the same time and do justice with both of them. तो ऐसे बहुत सारे आप स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस दे सकते हो. आपको नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है. सडनली ऐसा बोल ही कैसे दिया. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शो एंगर, फ्रस्ट्रेशन. मे बी दैट इज वॉट दे आर वांटिंग टू चेक कि अगर आपको थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं तो आर यू लेवल हेडेड, काम हेडेड, और आर यू समवन हु reacts spontaneously to situation, because then that might not make you a very good team player. सडनली किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो इनअप्रोप्रिएट था, तो आप गुस्सा हो जाओगे क्या? नहीं होगे गुस्सा. यार लेवल हेडेड पर्सन, काम है आपका, कंपोजर, टेम्परामेंट बहुत सही डायरेक्शन में है. तो फिर दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू असेस. सो broadly, this is it. Again, I'm repeating, part 1 and 2 are not comprehensive. Part 1 and 2 अगर आपने अच्छे से देख लिए हैं तो it will help you prepare in the right direction. If you have any questions, please put them in comments. If you have any suggestions, please put them in comments, so we can have more such sessions, or get your doubts rectified. But please watch both the sessions and make sure that you do a very, very good job when you appear in the actual interviews. All the best from my side. I'll take a leave. Ciao.